Hello everyone. Now we will do the question number 7 of the second exercise. Okay. Now in this given that in the figure 1.41 AB is parallel to CD and parallel to FE. So first let me draw the figure. Three lines are there, those are parallel to each other. These two will be the transversal AB. This is CD and next is the EF, and it's given that this is 12 and X, this is 8 and 4. So in the figure AB is parallel to CD, parallel to EF. Find the value of X and A. चलो पहले given लिख लेते फटाफट. Now AB is parallel to CD, parallel to EF, and AC is equals to 12, but the C is equals to X, BD is equals to 8, and DF is equals to 4. Okay, so these three are the parallel lines. So we'll write here by the property of three parallel lines and they are transversal. So by the property of three parallel line and they are transversal, the formula will be BD upon DF is equals to AC upon CE. Now BD is the 8 upon 4 is equals to 12 upon X. अब इसको X फाइंड आउट करना, तो X को इधर लेके आता हूँ, नीचे था X क्रॉस हो गया, देन 8 upon 4 will go to the right side, will be 12 into 4 upon 8. Now 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 2 1 ja 2, 2 4 ja 2 6 ja 12. That means my X is equals to 6. There are two questions are there. Find the value of X as well as AE. So we'll write here AE is equals, in the figure AE is the AC plus C. Right now is given AC is the 12 and C means X, that is we got 6. C is the X, we got the 6. So 12 plus 6 is the 18. चलो देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है. पहले क्वेश्चन में बोला है कि ये तीन लाइन पैरेलल है, A B C D and EF, and these two are the transversal line. And the given data are given, AC is the 12, C is the X, BD is the 8 and DF is 4. By the property of three parallel lines and they are transversal, that BD upon DF, ratio of one side is equal to ratio of other side, AC upon C. Now substitute the values, BD is given 8, DF is given 4, AC is the 12 and C is the X. Now to find X, take the X to the left side, so the denominator will become the numerator. So it will be X is equals to 12 into 4 upon 8. अभी कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4 2 जा, देन 2 1 जा एंड 2 6 जा. सो X कितना मिला 6. अभी X 6 मिला तो मतलब C मेरा 6 हो गया. अभी हमको फाइंड आउट करने बोला था SE, AE मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो हमने लिखेंगे AC प्लस C, दैट इज पहले 12 दिया था, अभी मिला 6, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18. So 7th one completed. Now we'll go for the remaining 4 questions, and that questions are all based on the basic proportionality theorem. अब ये थ्योरम क्या समझते हैं? अभी तक हमने दो थ्योरम पढ़े, एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल इन द ट्रांसवर्सल. What is basic proportionality theorem? This theorem says that basic proportionality theorem. This theorem says that for any triangle, if a line is parallel to one of the side of the triangle, the triangle name is A, B, C, and it is D and E, then that line will divide the two sides with the equal proportion. That means AD upon DB is equals to AE upon EC.
जिसको पैरेलल है उसको छोड़ के जो दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शनल डिवाइड करेगा, जहाँ पे भी डिवाइड करेगा उस साइड में उसका, जैसे मान लेते हैं डी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता और इसको पी क्यू बोलता, ये दोनों नहीं होता, तो आप क्या बोलते हैं, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। दूसरा फिगर मान लेते हैं, फिगर ऐसा दिया हुआ है एंड द लाइन इज पैरेलल, दिस इज पी एंड क्यू। मैं आपको सजेस्ट करूंगा हर टाइम ये वाला पॉइंट पकड़ना, जो पैरेलल के सीधा वाला पॉइंट ना वहां से, सी पी अपॉन पी ए इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू बी। लिख तो आप कैसे भी सकते हो बट रेशियो सेम होना चाहिए, बट ये बेटर होता है। मान लेते तीसरा फिगर, अभी ऐसे पैरेलल है, ये तो ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, ये वाला पैरेलल लेते हैं, ए बी सी पी एंड क्यू। बताओ कर्नल वाला पॉइंट कौन सा दिख रहा है ना, दैट इज बी, बी पी अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का फॉर्मूला। कभी भी कोई लाइन अगर एक साइड को पैरेलल होता है ट्राइंगल का, तो दूसरे दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। अभी थ्योरम समझ में आ गया। इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स का मतलब हर टाइम क्या होता है, रिवर्स जैसे बोलते हैं। पैरेलल है दैट मीन्स इसमें पैरेलल दिया होता है कि दिस टू आर द पैरेलल, दिस टू आर द पैरेलल, यह जो था पहले से पैरेलल। अभी क्या दिया होगा, हमको सेगमेंट के मेजरमेंट्स दिया होगा, हमको पूछेगा पैरेलल है कि नहीं बताओ। जब हमको पैरेलल बताना पड़ेगा उस टाइम हम उसको बोलते हैं कन्वर्स थ्योरम। क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्स थ्योरम। इन दिस थ्योरम मेजरमेंट्स आर गिवन, यू हैव टू से दैट वेदर दे आर पैरेलल और नॉट। तो क्या करेंगे उस टाइम में, पहले रेशियो चेक करेंगे, अभी इक्वल नहीं देंगे, फर्स्ट इसका रेशियो ढूंढेंगे, सेकंड इसका रेशियो ढूंढेंगे। इफ द बोथ रेशियो आर इक्वल दैट टाइम यू कैन से दैट द पैरेलल बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दैट टाइम विल राइट द कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन आप समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 पहले करना है जो कन्वर्स थ्योरम का है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 is given that in triangle PQR, चलो मैं पहले फिगर बनाता हूं, PQR M and N। in triangle PQR PM is equals to 15, PQ equals to 25। PQ means it is PM means this much only, PR equals to 20, NR equals to 8। You have to say that whether this MN is parallel to this one। देखो इसमें पैरेलल पूछ रहा है, मतलब कन्वर्स थ्योरम। अभी पहले गिवन डेटा लिख देते हैं। गिवन डेटा में क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल PQR PM is equals to 15, PQ is equals to 25, PR is equals to 20, NR equals to 8। बस इतना ही चीज़ें दिया हुआ है। अभी छोटा सा प्रॉब्लम क्या दिखा, जब हम कन्वर्स थ्योरम करते हैं तो वहाँ पे सेगमेंट की रेशियो लेते हैं। ये जो आधा सेगमेंट दिख रहा है, छोटा वाला सेगमेंट, ये सेगमेंट का रेशियो। अब इसमें से ये वाला तो अननोन है, अभी इसमें भी देखो ये वाला अननोन है। तो पहला काम है इस अननोन टर्म्स को फाइंड आउट करना। तो पहले हम क्या करेंगे ना, PN ढूंढेंगे। सेकेंड स्टेप में PN इज इक्वल्स टू, मैं इसका फॉर्मूला बना दे रहा हूँ, PR माइनस NR। PR कितना था टोटल 20 माइनस NR कितना था 8 इज इक्वल्स टू 12। अभी जो अननोन था मुझे कितना मिल गया 12। सेम जैसे PN ढूंढे ऐसे इसमें क्या ढूंढेंगे, MQ। फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल PQ है माइनस जो गिवन दिया है वो PM, दैट इज 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 10। बताओ ये समझ में आ गया। पहला चीज़ ये क्यों किए समझा, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में रेशियो चेक होता है, तो इसलिए हमको रेशियो जो सेगमेंट का चेक होता है, तो सेगमेंट दोनों मिलना चाहिए। ये एक सेगमेंट मिसिंग है, दूसरा सेगमेंट दिया है, टोटल साइड दिया है और हमारे फॉर्मूला में टोटल साइड आता ही नहीं। अभी हम क्या करेंगे, एक एक रेशियो लेंगे। फर्स्ट लेफ्ट साइड का लेते हैं, PN अपॉन NR
बताओ Pn कितना मिला था 12, Nr कितना दिया था 8, 4 3 जा 4 2 जा, तो रेशियो बना इसका 3/2। सेकेंड रेशियो अगर सेम हो गया तो ये पैरेलल होगा। अभी सेकेंड रेशियो क्या है ना, Pm/mq 15/mq दिया था 10। अभी 25 और 20 का काम नहीं है, 5 3 जा एंड 5 2 जा, सो आंसर 3/2। बताओ दोनों रेशियो सेम मिला। जब सेम मिला अभी लिखोगे एज Pn/Nr is equals to Pm/mq, so Mn is parallel to Rq by converse basic proportionality theorem। कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ CBPT। क्या लिखा हूँ मैंने, CBPT, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये समझा कि वापस समझाऊँ। इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, समझा ये क्यों कैलकुलेट किया हमने, हमारे रेशियो में जो साइड चाहिए वो मिसिंग था, इसलिए हमको ये कैलकुलेट करना पड़ा। बाकी ये तो दोनों रेशियो आपको समझ में आ जाएगा, रेशियो फाइंड आउट करना, सेम हुआ तो ये पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। फोर इज गिवन, measurement of some angle are given in the figure, prove that AP/PV, okay, one figure is given A, B, C, here is the P and Q and angles are given 60 degree. You have to say so that AP/PB is equal to AQ/QC। ये हमारा BPT का फॉर्मूला है, बस खाली गिवन क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइन। बट ये पैरेलल तो दिया नहीं, हमको पैरेलल प्रूव करना होगा, तो पहले गिवन लिख लेते हैं। सो गिवन विल राइट हियर इन ट्रायंगल ABC एंगल APQ is equals to 60 डिग्री एंड एंगल ABC is equals to 60 डिग्री। बता दोनों एंगल दिया ना 60-60। अभी लिखेंगे यहाँ पे therefore PQ is parallel to BC by alternate angle test। ये एंगल नहीं, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, अल्टरनेट नहीं, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अभी समझते करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या होता है। जब 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड वन ट्रांसवर्सल इज देयर, द एंगल, दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड इज द करस्पॉन्डिंग एंगल। जो करस्पॉन्डिंग प्लेस में होते हैं ना, उनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। अगर पैरेलल लाइन है तो एंगल्स इक्वल होते हैं। अब इसके टेस्ट क्या होगा, अगर कोई दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो बताओ यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं, और सेम है दोनों, तो लाइन क्या हो गया, पैरेलल। इफ इट इज पैरेलल, नाउ आई कैन पुट द फॉर्मूला ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। सो इन राइट हियर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दैट AP/PB इज इक्वल्स टू AQ/QC। और ये हमको शो करना था। ये छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूँ, देखो खाली। ये पार्ट का मतलब गिवन डेटा, ट्रायंगल का नाम क्या लिखे है, ABC, एंगल कौन सा है, APQ एंड ABC, बोथ आर 60 डिग्री। देन PQ विल बी पैरेलल टू BC। जब ये एंगल दोनों सेम होगा तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। कौन से थ्योरम होगा, कौन सी प्रॉपर्टी में, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। और करस्पॉन्डिंग एंगल समझ लो क्या होता है, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो लाइन के जो एक साइड के ऊपर वाले नंबर, जहाँ पे एफ बनाते हमने पढ़े थे, दे आर इक्वल। इफ दे आर इक्वल देन द लाइन विल बी पैरेलल। जैसे ही पैरेलल हो गया, हमारे फॉर्मूला क्या होता है ना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होता है कि कभी लाइन अगर पैरेलल हुआ कोई ट्रायंगल में, देन द रेशियो ऑफ द वन साइड सेगमेंट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ अदर साइड सेगमेंट, दैट मीन दे आर इन द इक्वल प्रोपोर्शन। सो AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC। कंप्लीट करो। नेक्स्ट विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज एन एक्टिविटी सम है।
पहले हम लिख के सॉल्व करेंगे, फिर आप एक्टिविटी उसमें कंप्लीट करोगे। इज गिवन दैट in the ensuing figure x is a point in the interior of the triangle, point x join the vertex of the triangle segment pq parallel to d। ओके, तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, d e f and x is the point interior, here is the one line, ठीक है, और इसको दिया है P Q R। इफ पी क्यू पैरेलल टू डी, ये पी क्यू किसको पैरेलल है, डी को, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ, देन ई हैव टू प्रूव दैट दिस टू ऑल्सो पैरेलल। अब देखो क्या दिया कि ये बोल रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं और इसको पैरेलल प्रूव करना है। जब ये पैरेलल दिया है, अभी छोटा ट्रायंगल में हम बीपीटी यूज करेंगे, यहाँ पे बीपीटी यूज करेंगे, पैरेलल प्रूव करना है तो उसको लिखेंगे कन्वर्स बीपीटी। क्या करेंगे, कन्वर्स बीपीटी। तो पहले मैं देखता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 10 गिवन में क्या लिखना है, इन ट्रायंगल डी ई एफ एक्स इज द पॉइंट इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, देन पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई, क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ। बस ये हो गया गिवन। अभी सॉल्व कैसे करेंगे, एक एक ट्रायंगल हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। पहले ये वाला ट्रायंगल देखो, फर्स्ट ये ट्रायंगल, सेकंड ये ट्रायंगल, थर्ड में कोई ट्रायंगल लेना नहीं, वो अपना पैरेलल प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट ट्रायंगल का नाम यहाँ से लेंगे, डी एक्स डी ई। इन ट्रायंगल एक्स डी ई पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई, और ये हमको दिया हुआ है गिवन। देन विल राइट हियर एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, दोनों में मैंने ये ट्रायंगल को अलग किया, एक्स डी ई, और यहाँ पे जो पी क्यू था ऐसा। अभी बताओ ये अगर पैरेलल हुआ तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने बताया था ना, सेंटर पॉइंट से चेक करना, कर्नल पॉइंट से, एक्स पी अपॉन पी डी एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। देन नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा लेंगे, नीचे वाला। इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, उसके लिए दूसरा कलर मैं कर लेता हूँ, देखो एक्स ई एफ, एक्स ई एफ, क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ। इसमें क्यू आर किसको पैरेलल है, ई एफ को। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो एक्स क्यू, वापस बना दे रहा हूँ, एक्स ई एफ, यहाँ पे क्यू और आर, फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। अभी बताओ ये दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको लग रहा है, देखो वन साइड, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। इफ आई गिव एन एग्जांपल, इफ आई से x इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 इक्वल्स टू y, x क्या है मेरा 2 है और 2 क्या है y है, आई कैन से x इज इक्वल्स टू y ऑल्सो। x जितना है y भी तो उतना ही है, खाली इधर उधर लिखा हुआ है खाली, तो x और y दोनों सेम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जो इक्वल है उसको नहीं लिखो, जो नहीं है उसको लिखो। एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ। अब बताओ एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स एक्स आर अपॉन आर एफ। अगर ये रेशियो और ये रेशियो सेम हो जाए तो ये लाइन अब इसको क्या हो जाएगा, पैरेलल। हैंस पी आर इज पैरेलल टू डी एफ बाय कन्वर्स बीपीटी। ये तीसरा वाला पार्ट। अभी एक एक पार्ट अच्छे से देखो है, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है एग्जाम में एक्टिविटी आने का।
तो पहले हमने गिवन लिखे, बताओ गिवन में कोई डिफिकल्ट नहीं है। ट्रायंगल का नाम क्या लिखे, DEF, इंटीरियर पॉइंट कौन सा है, X। देन PQ किसको पैरेलल है, DE को, QR पैरेलल किसको है, EF को, बस इतना गिवन दिया है। देन हमने लिखे ट्रायंगल XD, पहले ये वाला ट्रायंगल लिए, इसमें ये पैरेलल है तो फॉर्मूला बनेगा XP/PD = XQ/QE। फिर सेकंड ट्रायंगल कौन सा लिए, XEF, इसमें पैरेलल कौन है, QR, तो फॉर्मूला क्या बनेगा XQ/QE XR/RF। अभी दोनों इक्वेशन में 1 साइड सेम है तो रिमेनिंग 2 साइड को हमने क्या कर दिया, इक्वल, और ये जो दोनों साइड था रिमेनिंग, ये हमारे लिए इस ट्रायंगल के पार्ट्स है, तो ऑब्वियसली मेरा PR किसको पैरेलल हो जाएगा, DF। टेक्स्ट बुक में करेक्शन है, वहाँ पे DE लिखा हुआ है, इसको आप कट करके DF लिखना है, क्या लिखना है, DF। अभी देखो टेक्स्ट बुक में कहाँ कहाँ बॉक्स दिया है, पहला बॉक्स यहाँ पे दिया होगा गिवन में, फर्स्ट लाइन में देखो गिवन में, सेकेंड बॉक्स XP/डैश पूछा होगा, -QE। थर्ड में ये दोनों ही पूरा बॉक्स होगा, सारे टर्म्स इसमें बॉक्स हैं। एंड थर्ड नीचे ये पूरा बॉक्स है, और यहाँ पे राइट साइड में लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 to, मैंने इसको ऊपर लिखा हूँ, बस हो गया, बाकी सब तो दिया हुआ है आपको। समझा क्वेश्चन नंबर 10, पहला हमने ये ट्रायंगल लेना, दूसरा ये ट्रायंगल, फिर ये अपना प्रूव हो जाएगा पैरेलल। नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। 11th ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट वन है। Eleventh one is given, in triangle ABC, ray BD is bisect angle ABC. ABC में जो BD रे है किसको बाइसेक्ट किया है, B एंगल को, एंड रे CE bisect the angle C, then you have to prove that ED parallel to BC if segment AB is equals to segment AC। ये भी दिया हुआ है कंडीशन, AB किसको इक्वल है, AC को। एक एक लाइन को हम कवर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट गिवन क्वेश्चन नंबर 11, गिवन तो आपको आएगा लिखने के लिए यहाँ से, तो मैं लिख लेता हूँ गिवन, इन ट्रायंगल ABC रे BD bisect angle ABC, then ray CE bisect angle ACB। Then next is given, if segment AB is equals to segment AC, बस इतना ही गिवन दिया है। अब इस गिवन के ना सारे पॉइंट्स को हम यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इन ट्रायंगल ABC BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, सो AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम, इक्वेशन नंबर 1। ये दो लाइन समझते हैं पहले। ABC ट्रायंगल में अगर BD बाइसेक्टर हो जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा ना, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC, AB अपॉन BC AD अपॉन DC। सेम इसी ट्रायंगल में सेकेंड स्टेप के लिए CE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। अभी CE किसका बाइसेक्टर है, C एंगल का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AC अपॉन CB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें देखो, अगर CE बाइसेक्टर हो जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, AC अपॉन CB AE अपॉन EB। अभी थर्ड पॉइंट इसमें दिया हुआ है, सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट AC, इट्स गिवन, इक्वेशन नंबर 3। बताओ तीनों पार्ट समझा। अभी क्या लिखना हमको यहाँ पे, फ्रॉम
इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों को देखो ध्यान से, देखो लेफ्ट साइड में इसका क्या है, ए बी अपॉन बी सी, इसका क्या है, ए सी अपॉन बी सी, ये सी बी मतलब बी सी होता है। अभी यहाँ पे अलग कौन है, ये ए बी और ये ए सी डिफरेंट है, बट जो थर्ड इक्वेशन हमने बनाया है उसमें हमने लिखे ना ए बी इक्वल्स टू ए सी। अगर ए बी ए सी सेम हो गया इसका मतलब लेफ्ट साइड सेम हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 आई कैन राइट द राइट साइड ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी। अब एक बार फिगर में देखो, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी। अगर ये सेम हो गया रेशियो ए डी डी सी और ये सेम हो गया, तब जो लाइन बीच में है हैंस ई डी इज पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जहाँ पे पैरेलल प्रूव करना होता है उसमें कन्वर्स यूज होता है। क्या यूज होता है, कन्वर्स। अगर पैरेलल दिया है तो थ्योरम यूज होगा। देखो एंगल बाइसेक्टर दिया था, फॉर्मूला लिखे, एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला लिखे, ये गिवन स्टेटमेंट दिया था। इन तीनों की वजह से इन दोनों का लेफ्ट साइड सेम हो गया, तो राइट साइड को हमने सेम कर दिए, और राइट साइड जो रेशियो बना उससे हमको पता चला कि हमारा बीपीटी वाला फॉर्मूला आ रहा है, ए ई अपॉन ई बी ए डी अपॉन डी सी। अब इसका मतलब ये लाइन क्या हो गया, इसको पैरेलल बाय कन्वर्स बीपीटी। ये हो गया गिवन। गिवन में तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, हर एक गिवन का हर एक लाइन देखो, फर्स्ट लाइन को लिए पहला स्टेप, सेकंड लाइन को लिए सेकंड स्टेप, थर्ड लाइन को लिए थर्ड इक्वेशन। अभी लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 रेशियो विल बी इक्वल, दैट्स व्हाई दे आर द पैरेलल। सो हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी 1.2। द नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर द थर्ड एक्सरसाइज 1.3।